السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ آج ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں بی پی ایس سی اردو معلم کے مقابلہ جاتی امتحان کا پانچواں ٹیسٹ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں 80 سوال ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، سید محمد حسنین کے انشائیہ ہیرو میں سفر کرنے والے دوست باقی نے قلی کو کیا اٹھانے کے لیے کہا؟ تو آپشن ہے اپنا سامان، آپشن بی اپنی چھڑی، آپشن سی اپنا ٹکٹ، آپشن ڈی اپنا جوتا۔ تو دوستو، انشائیہ ہیرو میں پہلے باقی نے قلی کو اپنی چھڑی اٹھانے کے لیے کہا تھا، جبکہ دوسرے باقی نے اپنا ٹکٹ اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ تو یہاں دوسرے باقی کا سوال ہے کہ دوسرے باقی نے قلی سے کیا اٹھانے کو کہا تھا؟ دوسرے باقی نے قلی سے اپنا ٹکٹ اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ کیا اٹھانے کے لیے کہا تھا؟ ٹکٹ اٹھانے کے لیے کہا تھا، اس لیے آپشن اس کا سی صحیح ہو جائے گا۔ اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، شکیلہ اختر کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ آپشن ہے 1915، آپشن بی 1916، آپشن سی 1917، آپشن ڈی 1918۔ تو شکیلہ اختر کی پیدائش 16 اگست 1916 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 16 اگست 1916 کے اندر، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن صحیح ہو جائے گا؟ آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا کہ شکیلہ اختر کی پیدائش 16 اگست 1916 میں ہوئی تھی۔ اچھا، شکیلہ اختر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو گیا ضلع کے ارول گاؤں میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ گیا ضلع کے ارول گاؤں میں۔ گیا ضلع کے ارول ایک گاؤں ہے گیا ضلع میں، جہاں شکیلہ اختر کی پیدائش 16 اگست 1916 کو ہوئی تھی۔ شکیلہ اختر کا شمار بہار کی ممتاز اور منفرد افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ شکیلہ اختر نے افسانہ نگاری سے پہلے ادب لطیف جیسے نثر پاڑے تحریر کیے اور شاعری بھی کی۔ شکیلہ اختر کی کہانیوں میں عام طور پر متوسط مسلم گھرانے کا ماحول ملتا ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون پنڈت رتن ناتھ شرسار کا ناول ہے؟ ذیل میں سے کون پنڈت رتن ناتھ شرسار کا ناول ہے؟ آپشن ہے عبرت اور نصیحت، آپشن بی امراؤ جان ادا، آپشن سی گودان، آپشن سی ڈی ایک بستی۔ تو ذیل میں عبرت اور نصیحت پنڈت رتن ناتھ شرسار کا ناول ہے۔ کون سا عبرت اور نصیحت؟ اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ ان کی دیگر تصانیف میں پنڈت رتن ناتھ شرسار کی دیگر تصانیف میں فسانہ آزاد، پی کہاں، سیر کوثار وغیرہ شامل ہے۔ شرسار کھیڑی ضلع کے ایک اسکول میں جب معلم کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، تبھی ان کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ابن انشا کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشن اے 1975 برسن میں، آپشن بی 1978 دہلی میں، آپشن سی 1978 لندن میں، آپشن ڈی 1971 آگرہ میں۔ تو ابن انشا کا انتقال 1978 میں لندن میں ہوا تھا۔ ابن انشا کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ لندن کے اندر 1978 میں، اس لیے اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن صحیح ہو جائے گا؟ آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے، ابن انشا جو تھے 1977 میں ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اور علاج کے لیے 1977 میں وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، علاج کے لیے ان کو لندن لے جایا گیا تھا۔ کہاں لے جایا گیا تھا؟ لندن۔ لیکن افاقہ نہ ہوا، اور 2 جنوری 1978 کو افاقہ نہ ہونے کی صورت میں 2 جنوری 1978 کو لندن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 51 سال کی عمر پائی۔ ابن انشا نے کتنے سال کی عمر پائی تھی؟ 51 سال کی عمر پائی تھی۔ تو اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا کہ 1978 لندن میں۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمر پائی؟ آپشن ہے 61 سال، آپشن بی 62 سال، آپشن سی 63، آپشن ڈی 64 سال۔ تو مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ 64 سال کی عمر پائی تھی۔ کتنے سال کی؟ 64 سال کی عمر پائی تھی، اس لیے اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1790 یا 91 میں، 1790 یا 91 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1790 یا 91 میں۔ اور ان کی وفات 5 نومبر، ان کی وفات مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے وہ 5 نومبر 1852 میں ہے۔ کب ہے؟
5 نومبر 1852 में है اور उनकी जो तदफीन है वो अस्थाना में हुई थी। कहाँ हुई थी उनकी तदफीन? कहाँ हुई थी? अस्थाना में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, मौलाना सादिक अली विलायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 64 साल की उम्र पाई थी और उनकी पैदाइश 1790 या 91 में हुई थी। उनकी वफ़ात जो 5 नवंबर 1852 में हुई थी और उनकी तदफीन जो अस्थाना में हुई है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की शादी किससे हुई थी? ऑप्शन है अमीरन खातून, ऑप्शन बी इस्लामुन्निसा, ऑप्शन सी अमीरुन्निसा, ऑप्शन डी रज़िया खातून। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की शादी जो है अपने मामू मीर बाकिर की साहबजादी इस्लामुन्निसा से हुई थी। किससे हुई थी? इस्लामुन्निसा से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इनकी शादी इस्लामुन्निसा से 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। शादी के वक्त मौलाना की उम्र कितनी थी? 17 साल थी। शादी के वक्त मौलाना की उम्र 17 साल थी। उनका इंतकाल 31 दिसंबर 1914 को हुआ था। मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो है इंतकाल जो है 31 दिसंबर 1914 को हुआ था पानीपत में और उनकी तदफीन वही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दिलावर फगार के वालिदैन का क्या नाम, वालिद का क्या नाम था? वालिद का शाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, सी गालिब हुसैन, डी नासिर हुसैन। तो दिलावर फगार के वालिद का नाम शाकिर हुसैन था। क्या था? शाकिर हुसैन था। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शाकिर हुसैन जो बेदायूं के एक स्कूल में उस्ताद थे, स्कूल में क्या थे? उस्ताद थे। उनकी माशी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए दिलावर फगार के लिए आला तालीम का इंतजाम नहीं कर सकते थे। फिर भी किसी तरीके से उन्होंने इंटरमीडिएट और बीए किया और फिर एक इदारे में उस्ताद मुकर्रर हो गए। उस्ताद मुकर्रर होने के बावजूद भी वो तालीम से गाफिल नहीं रहे और माशियात से एमए करने के साथ साथ उर्दू से भी एमए किया था। मतलब दिलावर फगार जो है डबल पीजी थे, एक माशियात में और एक उर्दू में, लैंग्वेज में एक, माशियात में एक, उर्दू में। चलिए हम्द किसे कहते हैं? अगला सवाल, हम्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, ऑप्शन बी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, ऑप्शन सी जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ है, ऑप्शन डी जिसमें अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। तो दोस्तों जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है उसको नात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नात कहते हैं। जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ होती है उसको मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। जिसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है उसको मनाजात कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए जुबैदा, ऑप्शन बी अजीम, ऑप्शन सी महमूद, ऑप्शन डी खालिदा। तो अफसाना जो फिरार है उसका मरकजी किरदार महमूद है। कौन है मरकजी किरदार? महमूद है। इस अफसाना के खालिक मोहम्मद मोहसिन है। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। अफसाना फिरार के खालिक कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है, जो 1910 में पैदा हुए थे। 1910 में पैदा हुए थे। इस अफसाने में महमूद एक नौजवान मर्द है जो हॉस्टल में रहता है और ज़हीन तालिब इल्म है, लेकिन नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाता है। ये अफसाना सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो है नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है। किस नौइयत का अफसाना है? नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अफसाना आशियाना में सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगती है? ऑप्शन ए ज्यादा काम करने की वजह से, ऑप्शन बी अच्छा घर न होने की वजह से, ऑप्शन सी काम न करने की वजह से, ऑप्शन डी लड़ाई झगड़े की वजह से। लड़ाई झगड़े की वजह से। तो देखिए सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर काम न करने की वजह से उकताहट महसूस करने लगती है। सिराज की जो वालदा है वो अपने बेटे के घर पे काम न करने की वजह से उकताहट मालूम होती है उनको, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अदब की पहचान के मजमून निगार है। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी अब्दुल मुगनी, ऑप्शन डी सुहैल अजीमा बादी। निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी होगा सही? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस मजमून में अब्दुल मुगनी ने बताया कि हम अदब की शनाख्त किस तरह करें। एक फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है, लेकिन वो कितना अदबी है उसकी पहचान भी जरूरी है। अब्दुल मुगनी
عبد المغنی کے مضمون میں ادب اور اس کی پہچان کے لیے مکمل زور اس بات پر دیا گیا کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے یا نروان کا تصور کیا؟ آپشن اے خدا کا عرفان، آپشن بی علم کا عرفان، آپشن سی دل کا عرفان، آپشن ڈی کامیابی کا عرفان۔ تو بدھ مذہب میں جو ہے نروان کا جو تصور ہے وہ خدا کا عرفان ہے۔ کس کا عرفان ہے؟ خدا کا عرفان ہے، اس لیے آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ خدا کا عرفان ہے، آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، آریہ ورت کا تعلق کس عہد سے تھا؟ آپشن اے گپت عہد، آپشن بی مغلیہ عہد، آپشن سی موریہ عہد، آپشن ڈی برٹش عہد۔ تو آریہ ورت کا تعلق گپت عہد سے تھا۔ کس عہد سے تھا؟ گپت عہد سے، اس لیے آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ گپت عہد کو جو ہے سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے سائنسداں تھے، آریہ ورت جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق بھی اسی دور سے تھا۔ کس دور سے؟ گپت عہد سے، اس لیے آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، اردو میں غالب کے خطوط کے مجموعے شائع ہوئے۔ اردو میں غالب کے کتنے خطوط کے مجموعے شائع ہوئے؟ آپشن اے 3، آپشن بی 1، آپشن سی 2، آپشن ڈی 5۔ تو اردو میں غالب کے خطوط کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ کتنے شائع ہوئے ہیں؟ 2، اس لیے آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ 2 کون ہے؟ عہد ہندی اور اردو معلّہ، عہد ہندی اور اردو معلّہ۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، مہدی افادی پر کس ادبی تحریک کا اثر تھا؟ آپشن اے علی گڑھ تحریک، آپشن بی ترقی پسند تحریک، آپشن سی رومانی تحریک، آپشن ڈی اصلاحی تحریک۔ تو مہدی افادی پر رومانی تحریک کے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ کس تحریک کے اثرات مرتب ہوئے تھے؟ رومانی تحریک کے۔ رومانی تحریک کے، تو آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ حالانکہ مہدی افادی کے تصورات تضادات کے شکار بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو رومانی تحریک کا ان پر اثر ان کے ذہن پر پڑا، اور دوسری طرف بوجہ اس سے اختلاف کی نوعیت بھی ابھر آتی ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، بزم ہستی کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے دنیا کی محفل، آپشن بی آخرت کی محفل، آپشن سی دنیا کا غم، آپشن ڈی آخرت کا غم۔ تو بزم ہستی کے معنی ہے دنیا کی محفل۔ بزم ہستی کے کیا معنی ہے؟ دنیا کی محفل، اس لیے آپشن اے ہے اس کا صحیح ہوگا۔ سوال جو آپ کی اسکرین پہ سوال نمبر 7، کئی اجنبی راگیروں نے مجھ کو میرا نام لے لے کے آواز دی تھی، فضاؤں میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، مگر دوست یہ کس کی لکھی نظم کا حصہ ہے؟ کس کی لکھی نظم کا حصہ ہے؟ آپشن اے ندا فاضلی، آپشن بی چکبست، آپشن سی پرویز شاہدی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ مصرع ندا فاضلی کی نظم بجلی کا کھمبا سے لیے گئے ہیں۔ یہ جو مصرع ہیں ندا فاضلی کی نظم بجلی کا کھمبا سے لیے گئے ہیں، اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہوگا۔ کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن اے۔ ندا فاضلی ایک مشہور شاعر ہے جن کی پیدائش 1938 میں ہوئی تھی۔ ندا فاضلی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1938 میں ہوئی تھی۔ اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ وہ کون سے شاعر ہیں جس کی پیدائش 1938 میں ہوئی تھی؟ ندا فاضلی کے علاوہ بھی کون سے شاعر ہے جس کی پیدائش 1938 میں ہوئی تھی؟ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ آپشن اے تہران، آپشن بی عراق، آپشن سی ایران، آپشن ڈی بغداد۔ تو غالب کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ ایران سے ہندوستان آئے تھے، اس لیے اس کا آپشن سی سے ہو جائے گا۔ کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ سی، کہ غالب کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ غالب کے والد محترم عبداللہ بیگ خان آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے اور وہاں سے حیدرآباد گئے۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ آصف ہمدانی، آپشن بی غلام ہمدانی، آپشن سی عاقب ہمدانی، آپشن ڈی فائز ہمدانی۔ تو مصحفی کا پورا نام غلام ہمدانی ہے۔ کیا ہے؟ غلام ہمدانی، اس لیے آپشن 20 کا صحیح ہو جائے گا۔ اور تخلص کیا ہے؟ مصحفی ہے۔ تخلص کیا ہے؟ مصحفی۔ مصحفی کا پورا نام غلام ہمدانی اور تخلص مصحفی ہے۔ مصحفی کی پیدائش 1748 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1748 میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ امروہہ میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ امروہہ۔
अमरोहा कहाँ है दोस्तों? यूपी के अंदर। अमरोहा कहाँ? यूपी के अंदर। उनके वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे। मुसफ़ी को उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर हासिल था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? ऑप्शन ए वज़ारत ख़ारजा, ऑप्शन बी वज़ारत दफ़ा, ऑप्शन सी वज़ारत रेल, ऑप्शन डी वज़ारत दाखिला। तो हसन नईम जो है, हसन नईम आला दर्जे की मुलाजमत हासिल की थी, वो हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा से वाबस्ता थे, वज़ारत ख़ारजा से वाबस्ता से, इसलिए उसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हमारे मुल्क के किस सूबा में जमुना नदी के एक बड़े हिस्से का गुजर होता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो उत्तर प्रदेश सूबा में जमुना नदी के एक बड़े हिस्से का गुजर होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मशहूर मकबूल इमारत ताजमहल शाहजहां के जरिए जमुना नदी के किनारे ही तामीर कराई गई थी। ताजमहल कहाँ तामीर कराई गई है? जमुना नदी के किनारे। ये नदी अपने अंदर सदियों की तारीख समेटे हुई है। चलिए, तो जमुना नदी का किस सूबे से का बड़ा हिस्सा गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कर गए अफसोस किस किस की, गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें? गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें? हम हुए क्या क्या खिजल इस चश्म तर से क्या कहें? ये शेर किस शायर का? ऑप्शन है हसन नईम, ऑप्शन बी मुबारक अजीमाबादी, ऑप्शन सी परवीन शाकिर, ऑप्शन डी अहमद फराज। तो ये शेर जो है, मज़कूरा वाला शेर जो है मुबारक अजीमाबादी का। किसका है? मुबारक अजीमाबादी का, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुबारक अजीमाबादी का शेर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल कब हुई थी? 21 अप्रैल को 1869 में हुई थी। कब हुई थी? 1869 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दरभंगा में हुई थी। कहाँ हुई थी? दरभंगा में हुई थी। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 को दरभंगा में हुई थी। मुबारक अजीमाबादी मशहूर शायर दाग देहलवी के शागिर्द थे। दाग देहलवी के शागिर्द थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन, सैयद अफजल हुसैन, सैयद फैजुल हसन, सैयद अजहर हुसैन। तो हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन है। क्या? सैयद फजलुल हसन, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सही होगा? ए। हसरत तखल्लुस था। हसरत क्या था? तखल्लुस था। हसरत मोहानी की विलादत 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। हसरत का आबाई वतन जिला अन्नाव है। जिला अन्नाव है। इनका सिलसिला नस्ब हजरत इमाम अली मूसा रजा तक पहुंचता है। वह स्वदेशी तहरीक के जबरदस्त हामियों में से थे। उन्होंने आखिरी वक्त तक किसी विलायती चीज को हाथ नहीं लगाया। उनकी शायरी की इब्तिदा कस्बा मोहान में हुई और फतेहपुर में परवान चढ़ी और अलीगढ़ के इल्मी व अदबी माहौल ने हजरत के ज़ौक़ शायरी को और तक़वियत बख्शी। चलिए अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है, कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए हकीकत पसंदी, ऑप्शन बी ज़िला जगत, ऑप्शन सी नरम और पुरसोज अल्फाज, ऑप्शन डी बुलंद तखय्युल और शौकत अल्फाज। बुलंद तखय्युल और शौकत अल्फाज। तो दोस्तों कसीदा के लिए बुलंद तखय्युल और शौकत अल्फाज ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? बुलंद तखय्युल और शौकत अल्फाज ज़रूरी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं, याद रखिए, कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ की जाए, किसी की हिजो यानी बुराई की जाए, मदह की जाए या बुराई की जाए, ऐसी नज़्म को क्या कहा जाता है? कसीदा कहा जाता है। उर्दू ज़बान में कसीदा फारसी से आया है। उर्दू ज़बान में कसीदा कहाँ से? फारसी से आया। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने है गाढ़ा मग़ज़। ये सिर्फ अपने बुलंद और पुरशिको मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ़ सुख़न में मुमताज़ है और तमाम असनाफ़ में उसे वही अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ यानी सिरको हासिल होती है। कसीदा की ज़बान उम्मन पुरशिको और लहजा बुलंद आहंग होता है। इसमें अल्फाज के तराकीब पर रौब और बावकार हो, तशबीहात इस्तेआरात का मौजू इस्तेमाल हो, ख्यालात की नुदत और मुबालगा आमेज़ी हो, मगर गुलू से गुरेज किया जाए।
चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 25, मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए मलिक खुशनूद, ऑप्शन बी गव्वासी, ऑप्शन सी इब्न निशाती, ऑप्शन डी मुल्ला वजी। तो मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के मुसन्निफ गव्वासी है। कौन है? गव्वासी है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही हो जाएगा। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल 1624 में लिखी गई है। कब लिखी गई? 1624 में लिखी गई है। यह एक दास्तान मोहब्बत है जो अरबी की मशहूर दास्तान अलिफ लैला से माखूज है। किससे माखूज है? अरबी की मशहूर दास्तान अलिफ लैला से माखूज है। कुतुब शाही दौर का दूसरा बड़ा शायर गव्वासी है। कुतुब शाही दौर का दूसरा बड़ा शायर कौन है? गव्वासी है। इसकी हैसियत कुतुब शाही दरबार में मुल्क शोरा की थी। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के अलावा तूती नामा इसकी मशहूर तसनीफ है जो 1631 में, तूती नामा कब लिखी गई थी? तूती नामा लिखी गई थी 1631 में लिखी गई थी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? ऑप्शन ए सरल बयान, ऑप्शन बी गुलजार नसीम, ऑप्शन सी फूलबंद, ऑप्शन डी गुलशन इश्क। तो जोगन का किरदार मसनवी सहरुल बयान में मिलता है। किसमें मिलता है? मसनवी सहरुल बयान में मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये उर्दू की जिंदा जावेद मसनवी है। इसका किस्सा अवध की जिंदगी का जीता जागता मुरक्का किस्सा की बुनियाद किरदारों पर है। मीर हसन अपने दौर के अहम शायर और मशहूर मारका आरा शख्सियत है। इस मसनवी का किस्सा ज्यादा पेशदार नहीं है। शहजादा बेनज़ीर और शहजादी बदर मुनीर की मोहब्बत और आशिकी ही मकसूद है, लेकिन बेनज़ीर को बदर मुनीर से मिलने से पहले एक परी मारूख उड़ा ले जाती है और परिस्तान के बाग में उसे कैद कर लेती है। मसनवी अपनी ज़रूरी लवाजिमात के साथ लिखी गई है, जिसमें हम्द, नात, मनक़बत, तारीफ, असहाब पाक, मनाजात वगैरह सभी कुछ मौजूद है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से हाली की तसनीफ कौन सी? इनमें से हाली की तसनीफ कौन सी? ऑप्शन ए बनातुन्नास, ऑप्शन बी नसीहत का किरण फूल, ऑप्शन सी मजालिस निसा, ऑप्शन डी तौबतन नसूह। तो इसमें हाली की तसनीफ कौन सी है? तो मजालिस निसा हाली की तसनीफ है। कौन सी? मजालिस निसा, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाली ने नज़ीर अहमद की तरह समाजी जिंदगी की इस्लाह के लिए तालीम और तरबियत के बुनियादी मसले की अहमियत और ज़रूरत वाज़ेह की है। हाली ने इस किताब का नाम मजालिस निसा रखने में ये जिद्दत बरती है कि हर एक बाब को उन्होंने मजलिस लिखा है। इस किताब में 9 मजलिसें हैं और हर मजलिस में ऐसे मौज़ूआत से बहस की गई है जिनसे औरतों के तरीक़ा तालीम की वजाहत है। हाली ने इसमें ज़माना गदर के बहुत से मसाइल को भी पेश किया गया है। तो इनमें से हाली की तसनीफ कौन सी? मजालिसुन निसा, ऑप्शन सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए अजीज अहमद, ऑप्शन बी सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन डी हंसराज रहबर। तो किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ अजीज अहमद है। कौन है? अजीज अहमद, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अजीज अहमद की अदबी शख्सियत का एक जाविया तनकीद भी है। इनकी अदबी शख्सियत का एक जाविया क्या है? तनकीद है। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का तनकीदी जायजा है। अजीज अहमद जिला बाराबंकी में पैदा हुए। तकसीम के बाद वो पाकिस्तान आ गए। अगला सवाल, मिर्जा गालिब का सन वफात क्या है? 1869, 1872, 1874 और 1875। तो मिर्जा गालिब का सन वफात जो 1869 है। क्या? 1869 मिर्जा गालिब का सन वफात है। उर्दू दुनिया में मिर्जा गालिब की हैसियत एक अजीमुल मर्तबा शायर की है। उनकी कादिरुल कलामी और अज़मत से इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं। मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए तो उनका खानदान आगरा के मुअज़्ज़ज़ खानदान में शुमार था। 5 बरस की उम्र में वालिद का साया आतिफत से महरूम हो गए, लिहाजा चचा ने सरपरस्ती की। 11 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी और 15 बरस तक शोहरत दवाम हासिल कर ली। चलिए अगला सवाल, इंदु किस अफसाने का किरदार है? इंदु किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए लाजवंती, ऑप्शन बी तबक, ऑप्शन सी अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन डी भोला। तो इंदु का किरदार बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का है। इंदु किस अफसाने का किरदार है?
अपने दुख मुझे दे दो, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसाना किनका है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। बेदी के अफसाने में निसाई किरदार को खास अहमियत हासिल है। इस अफसाने में बेदी ने हिंदू का किरदार खून जिगर की आमेजिश से तराशा है। इस किरदार की पैकर तराशी करते हुए हिंदुस्तानी माशरे की वो तमाम तमद्दुनी और मजहबी रवायत को रोशन कर दिया है जिनसे एक बीवी का किरदार वाबिस्ता होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? ऑप्शन ए तनकीद क्या है, ऑप्शन बी तनकीदी नजरियात, ऑप्शन सी उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ऑप्शन डी तनकीदी दबिस्तान। तो एहतशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब इसमें कौन सी है? तनकीदी नजरियात एहतशाम हुसैन की मुरत्तब किताब है। कौन सी? तनकीदी नजरियात। तो तनकीदी नजरियात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हो, जो 1965 में शाये हुई थी। कब शाये हुई थी? 1965 में शाये हुई थी। इनकी तनकीदी किताबें तनकीदी जायज़े रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद और ज़ौक़ अदब, शूर और एतबार नज़र के नाम से शाये हुई। एहतशाम हुसैन की तनकीदी फ़िक्र का महवर हमेशा मार्कसी फ़लसफ़ा हयात रहा। अदब के अलावा तारीख़, सियासत, इक़्तिसादियात और इमरानियात वगैरह पर उनकी गहरी नज़र है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। शेर मुकम्मल कीजिए, शेर मुकम्मल कीजिए। हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को, हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को, मकदूर हो तो साथ रखूं को मैं। ऑप्शन ए राहबर, ऑप्शन बी नौहागर, ऑप्शन सी नामाबर, ऑप्शन डी चारागर। तो मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को, नौहागर को, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये शेर उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब का, शेर किसका है? गालिब का शेर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। शोरा उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ है? शोरा उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए नूरुल हसन, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी हनीफ अहमद नकवी, ऑप्शन डी रशीद हसन खान। तो शोरा उर्दू के तस्करे हनीफ अहमद नकवी की, किसकी तसनीफ है? हनीफ अहमद नकवी, हनीफ अहमद नकवी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये शोरा उर्दू के तस्करे हनीफ अहमद नकवी की तसनीफ है। ये एक तहकीकी मकाला है। कौन सा मकाला है? तहकीकी मकाला, जो 1976 में शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1976 में। इसमें नुकात शोरा से गुलशन बेखार तक को मौजूद बहस बनाया गया। नुकात शोरा से गुलशन बेखार तक को मौजूद बहस बनाया गया। अदबी तहकीक में इसकी बहुत अहमियत है। हनीफ अहमद नकवी महमूद शिरानी और काजी अब्दुल वदूद की तरह नजरिया साज मुहक्किक नहीं थे, लेकिन रिवायत साज जरूर थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी? ऑप्शन ए करबल कथा, ऑप्शन बी बागोबार, ऑप्शन सी किस्सा महर अफरोज और दिलबर, ऑप्शन डी मसनवी कदमराव। तो इसमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? तो इसमें से सबसे कदीम किताब मसनवी कदमराव है। इनमें सबसे कदीम है कौन? मसनवी कदमराव। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब तक की तहकीक के मुताबिक मसनवी दक्कनी उर्दू अदब से सबसे कदीम मसनवी है, जो बहमनी दौर में लिखी गई है। दरबारी शायर फखरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फखरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी। उर्दू नसर की इब्तिदा दक्कन में हुई। इसके बाद शिमाल में उर्दू नसर का फ़रोग़ हुआ, जिसमें ईसवी खान बहादुर की तस्नीफ़ किस्सा महर अफरोज दिलबर है, जो एक तबाज़ात मुख्तसर दास्तान है। जो क्या तबाज़ात मुख्तसर दास्तान है। और तहसीन की करबल कथा में शुमाली हिंद के इब्तिदाई नक़ूश मिलते हैं। उसके बाद मीर अहमद ने बागो बहार लिखी। यहीं से फोर्ट विलियम कॉलेज की नस्ली खिदमत शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं? कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं? ऑप्शन ए बेनज़ीर, ऑप्शन बी बद्र मुनीर, ऑप्शन सी महताब रुख, ऑप्शन डी नजमुन निसा। तो
महताब रुख का नाम किरदार मसनवी सहल बयान का नहीं है कि कौन सा किरदार है महताब रुख। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही हो जाएगा कि महताब रुख का नाम मसनवी सहल बयान में नहीं है। सहल बयान के किरदार में मारूख, बद्र मुनीर, बेनज़ीर और नजमुन्निसा खास है। मारूख खूबसूरत परी है, इश्क पसंदी के साथ साथ रकाबत और इंतकाम का शदीद जज्बा रखती है। नजमुन्निसा असब से शौक और मुतहर्रिक किरदार है। नजमुन्निसा जो है मसनवी सहल बयान की सबसे शौक और मुतहर्रिक किरदार है। इस मसनवी का शहजादा बेनज़ीर मुल्क शाह बादशाह का बेटा है। किस्सा का मरकजी किरदार बद्र मुनीर है जो शाहाना वक़ार, हुस्न खूबी, नाजो अदा, ऐशो मोहब्बत का पैकर है। यह मसनवी अपनी किरदार निगारी के हवाले से भी खास मशहूर है। किरदार निगारी के हवाले से यह मसनवी भी खास मशहूर है। चलिए मजमुआ नग़्ज़ क्या है? मजमुआ नग़्ज़ क्या है? ऑप्शन ए तारीख़ है, ऑप्शन बी तनक़ीद है, ऑप्शन सी तबसरा, ऑप्शन डी तज़किरा है। तो मजमुआ नग़्ज़ क्या है? तज़किरा है। क्या है? तज़किरा है, इसलिए उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एक तज़किरा इसका मुसन्निफ अबुल क़ासिम मीर क़ुदरतुल्लाह है। इसके मुसन्निफ कौन है? अबुल क़ासिम मीर क़ुदरतुल्लाह। अबुल क़ासिम मीर क़ुदरतुल्लाह है। चलिए इस तज़किरे को महमूद शिरानी ने 1932 में मुरतब किया था। इस तज़किरे को किसने मुरतब किया था? महमूद शिरानी ने। किसने? महमूद शिरानी ने। कब किया था? 1932 में। कब किया था? 1932 में मुरतब किया था। ये तज़किरा 693 शुरा के हालात और 800 सफ़ा पर मुश्तमिल है। यह तज़किरा जो है नग़्ज़ जो तज़किरा है ये 693 शुरा के हालात इसमें है। कितने हैं? 693 शुरा के हालात है। और ये किताब कितने सफ़हात पर है? 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये किताब। यह तज़किरा जैसा कि वज़ाहत की तालीफ़ का दस्तूर है फ़ारसी ज़बान में है। ये तसनीफ़ मोहम्मद शाह के ज़माने से लेकर शाह आलम सानी के इख्तिताम में आहद तक के शुरा के हालातों कलाम पर रोशनी डालती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शेयर मुकम्मल कीजिए। दी दुनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत डॉट डॉट डॉट। दी दुनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत? आगे क्या? नज़र ने खाई है, खुशी ने पाई है, गमों ने ढाई है, मियाँ उठाई। तो क्या इमारत गमों ने ढाई है? क्या इमारत गमों ने ढाई है? इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा कि दी दुनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत गमों ने ढाई है। ये शेर मीर तकी मीर का शेर है। किसका शेर है? ये शेर मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर का ये शेर है। मीर की अजमत का राज शायद यही है कि उन्होंने सीधे साधे अंदाज और बोलचाल की जबान में अपने दर्द का इजहार किया है। उनकी शायरी का कमाल यह है कि मीर ने आप बीती को जग बीती बना दिया है। मीर ने क्या किया है? जो आप बीती थी उसको जग बीती बना दिया है। यह हकीकत है कि मीर का कोई सानी नहीं। उसके अशार सादा और फसी है जो तंज निश्तर का काम करते हैं और दिल पर कारी ज़रब लगाते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर तज़किरा नुकात शुरा की ज़बान में लिखा गया है। तज़किरा नुकात शुरा की ज़बान में लिखा गया। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। तो तज़किरा नुकात शुरा जो है फारसी ज़बान में। किस ज़बान में? फारसी ज़बान में। किस ज़बान में? फारसी ज़बान में। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी डी सही होगा। मीर तकी मीर ने 1665 में यह तज़किरा लिखा था। ये तज़किरा किसने लिखा था? मीर तकी मीर ने। कब लिखा था? 1665 में। 1165 हिजरी में। कब लिखा था? 1165 हिजरी में। 1665 नहीं, सॉरी 1165 हिजरी में उन्होंने ये तज़किरा लिखा था जो उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है। उर्दू का क्या सबसे पहला तज़किरा है। इसके बाद उर्दू तज़किरों की रिवायत में इजाफा हुआ। तज़किरा निगारी की फ़िक्री व फ़नी मुबाहिस और मेयार भी बुलंद हुआ। ये शुरा के हालात ज़िंदगी, नमूना कलाम और पैदाइश वफ़ात जैसी बुनियादी मालूमात का अहम ज़रिया साबित हुआ। शायरों और उर्दू शायरी की सूरत हाल को एक हद तक तज़किरे लाज़मी तौर
तस्करे लाजमी तौर पर मुतारिफ करवाते हैं। उर्दू तस्करों का सफ़र मीर तक मीर के औकात शोरा से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात तक मुश्तमिल है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रानी केतकी की कहानी किस जबान में लिखने का दावा किया गया है? रानी केतकी की कहानी किस जबान में लिखने का दावा किया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी दक्कनी, ऑप्शन डी कुजरी, कजरी या कुजरी जो भी हो। तो रानी केतकी की कहानी हिंदी जबान में लिखने का दावा किया गया। किस जबान में? हिंदी जबान में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ये इंशाअल्लाह खां इंशा की दूसरी मशहूर नसरी तसनीफ है, या इंशाअल्लाह खां इंशा की दूसरी मशहूर तसनीफ है। कौन? रानी केतकी की कहानी। ये एक तबाजात दास्तान है। रानी केतकी की कहानी एक तबाजात दास्तान है जो हिंदी और उर्दू दोनों जबान में अहमियत की हामिल है। इंशा ने इसके जरिए खड़ी बोली को तरक्की दी और खड़ी बोली ही उर्दू और हिंदी दोनों जबान की बुनियाद है। इस दास्तान में बैरूनी जबान का कोई लफ्ज नहीं है। इस दास्तान में बैरूनी जबान का कोई लफ्ज नहीं है। मान लीजिए कि अगर सवाल आ जाए कि वो कौन सी तबाजात दास्तान है जिसके अंदर बैरूनी जबान का कोई भी लफ्ज नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं रानी केतकी की कहानी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम? ऑप्शन ए फैज अहमद फैज, ऑप्शन बी नूर राशिद, ऑप्शन सी तसद्दुक हुसैन, ऑप्शन डी अख्तर ईमान। तो फैज अहमद फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उन्होंने तरक्की पसंद शायर होने की हैसियत से अपनी शायरी को इनकलाबी राय जनी से बचाया और रोमानी पैराए में पेश किया, इससे उनकी शायरी दवामी रंग इख्तियार कर गई। फैज ने जब शेर कहना शुरू किया उस दौर में रोमानियत की लहर हर तरफ थी। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ तो फैज उसके बानी अराकीन में शामिल थे। वो 20वीं सदी के ऐसे तरक्की पसंद शायर है जिसके एक तरफ रोमानियत है तो दूसरी तरफ समाजियात की मशाल। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी की शेरी रिवायत परतो किसकी गजलों में नजर आता है? अंग्रेजी की शेरी रिवायत का परतो जो है किसकी गजलों में नजर आता है? ऑप्शन ए आरजू लखनवी, ऑप्शन बी behzad लखनवी, ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन डी फानी बिदायूनी। तो फिराक गोरखपुरी की गजलों में अंग्रेजी की शेरी रिवायत का परतो नजर आता है। किसके? फिराक गोरखपुरी, से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिराक 28 अगस्त 1896 में पैदा हुए थे, या 28 अगस्त 1896 में पैदा हुए थे। उन्होंने उर्दू गजल को एक नया लबो लहजा अता किया था। वो एक शायर के बेटे थे और शेरी माहौल में परवरिश पाई थी। जवाहर लाल के इसरार पर कौमी तहरीक में हिस्सा लिया और इस सिलसिले में 1 साल की कैद भी काटी थी। गुले नगमा, गुले रौना, मशाल, रूह कायनात वगैरह इनकी तसानीफ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसकी नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है? ऑप्शन ए नज़ीर अकबराबाद, ऑप्शन बी मीरा जी, ऑप्शन सी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली, ऑप्शन डी नज़म तबा तबाई। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। किनकी? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की जो है नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। उर्दू अदब की तारीख में आली को कई हैसियतों से नुमाया मकाम हासिल है। उन्होंने शायरी को नई जिहत से आशना कराया। सासैयद तहरीक से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी शाहकार नज़म मुसद्दस हाली लिखी जो मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से मशहूर है। यह एक मशाल राह और संग मिल की हैसियत रखती है और मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी का निशात सानिया के लिए एक तहरीक का दर्जा रखती है। किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती है? ऑप्शन ए नूर राशिद, ऑप्शन बी मीरा जी, ऑप्शन सी अख्तर ईमान, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इकबाल की नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती है। किसकी? इकबाल की, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अल्लामा इकबाल। वो शायरी को पैगंबरी और सेहतमंद कदरों का तर्जुमान बनाने वाले शायर है। कौन? अल्लामा इकबाल। उनके नज़दीक कौम के ज़वाल और तमाम खराबियों की जड़ बेअमली
اور اپنی حقیقت سے بےخبری ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے ان تمام تصورات پر کاری ضرب لگائی اور خود ہی کا فلسفہ پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے انسان مادی اور روحانی ترقی تک پہنچ سکتا ہے۔ ذوق و شوق، خضر راہ، ابلیس کی مجلس شورا، مسجد قرطبہ وغیرہ ان کی شاہکار نظمیں ہیں۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ان میں سے کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ آپشن اے مہالکشمی کا پل، آپشن بی آدھے گھنٹے کا خدا، آپشن سی آخری کوشش، آپشن ڈی جامن کا پیڑ۔ افسانہ آخری کوشش کرشن چند کا نہیں ہے۔ کون سا آخری کوشش؟ اس لیے اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن سی کیا ہوگا؟ سی ہو جائے گا۔ یہ آخری کوشش جو کرشن چند کا نہیں ہے۔ اب جب آخری کوشش کرشن چند کا نہیں ہے تو کس کا؟ تو ان کے آخری کوشش کے مصنف کون ہے؟ حیات اللہ انصاری۔ کون ہے اس کے مصنف؟ حیات اللہ انصاری ہے۔ اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ ان کا افسانہ آخری کوشش میں دیہات اور شہر کی زندگی کشمکش دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہی ان کا افسانہ شکستہ کنگورے میں اس عہد کی جاگیردارانہ ماحول کو پیش کیا گیا جو آزادی کے آس پاس اپنی آخری سانس گن رہا تھا۔ ان کے افسانے کسی ایک ہی جس پر نہیں ٹکے رہتے بلکہ ان کے نگاہ میں افسانے کا ہر پہلو رہتا ہے۔ افسانہ آخری کوشش میں افسانے نگار ابتدا سے آخر تک کرداروں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ اگلا سوال، مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ آپشن اے سرور جہاں آبادی، آپشن بی نذیر اکبر آبادی، آپشن سی اکبر الہ آبادی، آپشن ڈی سیماب اکبر آبادی۔ تو اکبر الہ آبادی مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والے شاعر ہے۔ کون؟ اکبر الہ آبادی۔ اس لیے اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن سی صحیح ہو جائے گا؟ اردو ادب میں وہ ایک ایسے شاعر گزرے جس نے مغربی تہذیب، مسلمانوں کی مغربی تہذیب سے قربت، اپنے عہد کی سیاست، اس دور میں چلنے والی تحریکوں کے خلاف طنز و مزاح سے بھرپور شاعری کے ذریعے سے اپنا رد عمل پیش کیا۔ اکبر کو مغربی تہذیب سے چڑ تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں مشرقی و مغربی تہذیب کی کشمکش نظر آتی ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا؟ دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا؟ آپشن اے مصحفی، آپشن بی میر، آپشن سی درد، آپشن ڈی سودا۔ تو دلی اور دل کا مرثیہ میر تقی میر کی شاعری کو کہا گیا۔ کس کی شاعری کو؟ میر تقی میر کی۔ اس لیے آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن بی، میر تقی میر کو دل اور دلی کا مرثیہ میر تقی میر کی شاعری کو کہا گیا۔ اردو شاعری کے درد و سود و گزار سے مالا مال کرنے والے شاعر میر تقی میر ہیں۔ ان کی شاعری میں غم زیادہ پایا جاتا ہے۔ میر کی شاعری میں دلی کی صورتحال بھی نمایاں، میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنایا ہے، اس لیے ان کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی؟ آپشن اے فسانہ عجائب، آپشن بی باغ و بہار، آپشن سی سبرس، آپشن ڈی بستان خیال۔ تو باغ و بہار میر امن کی زندگی میں انگریزی زبان میں ترجمہ ہو گئی تھی۔ کون سی؟ باغ و بہار۔ میر امن کی باغ و بہار جو ہے وہ میر امن کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن صحیح ہو جائے گا؟ آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ یہ اردو نثر کی زندہ کتاب ہے جو امیر خسرو کی فارسی داستان قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ کس کا؟ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ قصہ چہار درویش کا اردو۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے جس کی سلاست، روانی، محاورہ، لطافت زبان قابل تعریف ہے۔ چلیے اگلا سوال، آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے؟ آگ کا دریا، آپشن بی تیری لکیر، آپشن سی فردوس بری، آپشن ڈی امراؤ جان ادا۔ تو اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن ڈی صحیح ہوگا؟ ڈی،
کہ उमराव जानदा ऐसी नावल है जो आप बीती के तर्ज पर लिखी हुई है। ये नावल रुस्वा मिर्जा हादी रुस्वा की है। इस नावल में किरदार जो है उमराव जान आदा को लेकर उसकी ज़िंदगी के हालात की मुकम्मल तस्वीर पेश की गई है। ये किस्सा दरअसल उमराव जान की आप बीती के तौर पर है। रुस्वा ने उमराव जान की ज़िंदगी का खाका इस उम्दगी से बयान किया कि एक तसलसल नावल के आखिर तक कायम रहता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तुम न आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है। तुम न आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है। सही मिसरे से शेर मुकम्मल करना है। जुनून में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी है वो सब ज़रूर सिर कुए यार गुजरी है। सिरे कोए यार गुजरी है। वो बात उसको बहुत नागवार गुजरी है। तलाश में से हर बार बार गुजरी है। तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है। तलाश में है से हर बार बार गुजरी है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये शेर फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है। आमतौर से नज़म के शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, लेकिन उनकी गज़लें भी अपनी फ़िक्री और फ़नी खूबी की वजह से उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। उनकी गज़लों में जज्बाती और रूमानी अनासर के साथ साथ हकीकत पसंदी के अनासर भी नुमाया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। खुर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खुर्द, जो चाहे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये किसका शेर है? ऑप्शन ए फानी का, ऑप्शन बी फिराक का, ऑप्शन सी हसरत का, ऑप्शन डी फैज का। तो ये शेर जो है ये शेर जो है हसरत का। किसका? हसरत का। हसरत एक आलिम थे, वो हमागिर और रंगारंग शख्सियत के मालिक थे। शायर भी थे और सहाफ़ी भी थे। शायर भी थे और सहाफ़ी भी थे। सियासी मुफक्किर और एक बागी इंसान भी थे। सियासी मुफक्किर और एक बागी इंसान भी थे। कौन? हसरत। उनकी शायरी में उनकी निशातिया रंग वाज़ेह है। हसरत की शायरी में इश्किया शायरी है। उनकी गज़लों में शगुफ्तगी, रोनाई, सेहत बख्श रिजायत मिलती है। ये शेर किसका है? हसरत का है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी फूलबंद, ऑप्शन सी शैल बयान, ऑप्शन डी गुलजार नसीम। तो ज़ैनुल मुलूक जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। किसका है? गुलजार नसीम का किरदार है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस मसनवी के सभी किरदार मसनूई और बनावटी है। मसनवी में ज़ैनुल मुलूक यूरोप का बादशाह, जिसका सबसे छोटा बेटा ताजुल मुलूक है, ये मसनवी का हीरो है। इसके गर्द सारी मसनवी के वाक़यात गर्दिश करते हैं। मसनवी का दूसरा अहम किरदार बकावली है, जो एक परी है। ये मसनवी दयाशंकर नसीम की लिखी हुई है। चलिए अगला सवाल। कौन सी तख्लीक राजिंदर सिंह बेदी की नहीं है? ऑप्शन ए अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन बी भोला, ऑप्शन सी सपनों के देश में, ऑप्शन डी ग्रहण। तो सपनों के देश के मुसन्निफ राजिंदर सिंह बेदी नहीं है। सपनों के देश के मुसन्निफ कौन? राजिंदर सिंह बेदी नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो राजिंदर सिंह बेदी का नहीं तो किसका है? ये अख्तर औरैनवी है। इसके मुसन्निफ कौन है? अख्तर औरैनवी। अख्तर औरैनवी ने जिस दौर में अफसाना लिखना शुरू किया उस वक्त हिंदुस्तान पर बरतानवी साम्राज्य का इक़्तिदार कायम था। इसके अफसानी मजमूए मंजर व पस मंजर, कलिया और कांटे, अनारकली और भूल-भुलैया, सीमेंट और डायनामाइट, किचलिया और बाले जिब्रील और सपनों के देश हैं।
सपनों के देश में उनका आखिरी अफसानवी मजमुआ किसका? अख्तर ओरेनवी का। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, किस नाकिद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी मजलू गोरखपुरी, ऑप्शन सी मुमताज, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन अस्करी। तो तरक्की पसंद तहरीक से मोहम्मद हसन अस्करी का ताल्लुक नहीं है। किसका? मोहम्मद हसन अस्करी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो उर्दू के मशहूर नक्काद होने के साथ साथ मुतरजम और अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने अपनी तनकीदी मज़ामीन और अफसानों के ज़रिए से जदीद मगरबी रुझानात को उर्दू में मुतारिफ कराया है। उनके अफसानों का पहला मजमुआ जज़ीरे हैं जो 1943 में शाये हुआ है। कौन सा जज़ीरे है जो 1943 में शाये हुआ है? उन्होंने मिंटू की मशावरत में मकतबा जदीद लाहौर से उर्दू अदब जारी किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कौन सा बयान दुरुस्त है? कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है, ऑप्शन बी शमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन डी नुकात शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा, ऑप्शन डी करबल कथा दक्कन की पहली तसनीफ है। तो नुकात शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, इसका ऑप्शन सी सही है। नुकात शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है। इसके मुसन्निफ कौन है? इनके मुसन्निफ है मीर तकी मीर। खुदाए सुकन मीर तकी मीर जो है तस्करा निकारी में भी अव्वलियत का दर्जा रखते हैं। उन्होंने शोरा के बयान में इख्तिसार से काम लिया है, चंद जुमलों में शोरा से मुतालिक अपनी राय पेश कर दी है। मीर ने शायरों की सीरत और किरदार और उनके कलाम की खुसूसियात बयान करते हुए मसलहत से काम लिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये किसका शेर? ऑप्शन ए मखदूम, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी मजरूह, ऑप्शन डी सरदार जाफरी। तो मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, ये शेर मजरूह सुल्तानपुरी का है। किसका? मजरूह सुल्तानपुरी का है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उमराव जान अदा का किरदार फैज अली क्या है? उमराव जान अदा का किरदार फैज अली क्या? ऑप्शन ए गुलाम, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी डाकू, ऑप्शन डी नवाब। तो नाविल उमराव जान अदा का किरदार फैज अली क्या है? डाकू है। कौन सा किरदार है? वो डाकू है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मिर्जा रुस्वा के किरदार फनकारी का मोजज़ा है। नावल में कदम कदम पर बहुत से किरदार मौजूद है, बावजूद इसके रुस्वा की किरदार निगारी कमाल की है। फैज अली के अलावा उमराव जान अदा, बिस्मिल्लाह जान खानम, उसके बाद क्या खुर्शीद जान, गौहर मिर्जा के किरदार नावल के अंदर जानदार किरदार है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए निगार में, ऑप्शन बी जमाना में, ऑप्शन सी जामिया में, ऑप्शन डी मुखसन में। तो प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार अदबी जरीदे जामिया में शाया हुआ था। किसमें? जामिया में, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। ये उनका आखिरी अफसाना है। कफन जो है उनका आखिरी अफसाना है जो अपनी फनी खूबी, क़ुव्वत मुशाहिदा और फिक्री गहराई की वजह से गैर मामूली अहमियत रखता है। ये उर्दू अदब का बेहतरीन अफसाना है। उन्होंने इस अफसाने में इंसानी फितरत की रिजालत को बेनकाब किया है। माधो और घेसू महज किरदार ही नहीं है बल्कि इस निज़ाम के भी अक्कास है जिसके पस मंज़र में ऐसे किरदार जन्म लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मीर हसन, ऑप्शन सी दर्द, ऑप्शन डी आतिश। तो दया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम हैदर अली आतिश है। क्या है? हैदर अली आतिश है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुगल दौर ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी है। मुगल दौर ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी है। गालिब,
اردو اور تاج محل یہ کس کا قول ہے؟ غالب اردو اور تاج محل یہ کس کا قول ہے؟ علامت سرور، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام، مالک رام۔ غالب نے مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہے، غالب اردو تاج محل یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا، اس لیے آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ یہ رشید احمد صدیقی اردو کے معروف انشائیہ نگار اور ادیب کا یہ جملہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ غالب اردو زبان اور تاج محل تینوں بر صغیر کی تاریخ کا حصہ ہے اور اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی نثر میں تخلیقی شان پائی جاتی ہے۔ ان کا مذکورہ بیان تخلیقی تنقید کی بہترین مثال ہے جسے ادب میں خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہے، غالب اردو اور تاج محل یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ آپشن اے ذوق، آپشن بی مومن، آپشن سی حسرت، آپشن ڈی غالب۔ تو امراؤ بیگم جو ہے غالب کی شریک حیات تھی۔ غالب کی جس وقت شادی ہوئی تھی تو غالب کی عمر 13 سال تھی اور امراؤ بیگم کی عمر 11 سال تھی۔ غالب 1797 میں پیدا ہوئے تھے۔ غالب کب پیدا ہوئے تھے؟ 1797 میں پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے وطن کو خیر باد کر دیا تھا، آ کر کے دہلی میں رہنے لگے تھے۔ جب مالی پریشانیوں سے مجبور ہوئے تو پھر قلعہ کی جو ملازمت اختیار کر لیا۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب عطا کیا تھا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ڈاکٹر سہیل بخاری، آپشن بی گرام بیلی، آپشن سی ڈاکٹر مسعود حسین خان، آپشن ڈی شوکت سبزواری۔ تو داستان زبان اردو یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ کس کی ہے؟ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے، اس لیے آپشن ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو ہے 1958 میں یہ کتاب 1958 میں یہ کتاب انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع ہوئی تھی۔ شوکت سبزواری اردو کے ممتاز ماہر لسانیات، نقاد، محقق اور شاعر تھے۔ انہیں اپنی تصانیف اردو لسانیات، ان کی تصانیف میں جو ہے اردو لسانیات، اردو قاعدہ، اردو زبان کا ارتقاء، داستان زبان اردو، نئی پرانے قدرے، غالب فکر و فن، فلسفہ کلام غالب کی وجہ سے اردو دنیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ کس کو؟ شوکت سبزواری کو۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ ہم خرما و ہم ثواب، گوشہ عافیت، جلوہ اثار، گودان۔ تو پریم چند نے اپنے ناول گوشہ عافیت میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے۔ کس میں؟ گوشہ عافیت میں، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا؟ آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ پریم چند نے اردو ناول کو ایک محدود فضا سے باہر نکالا اور موضوعات میں رنگا رنگی پیدا کر دی۔ وہ شہری زندگی سے باہر نکال کر دیہات کی طرف لے گئے، جس کی وجہ ان کا دیہاتی زندگی کا مطالعہ بھی تھا۔ گوشہ عافیت میں انہوں نے دیہات کی فضاؤں میں رچے بسے رومان سے متعارف کرایا۔ اگلا سوال، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا کیا نام ہے؟ آپشن اے سندر لال، آپشن بی منوہر، آپشن سی منگر، آپشن ڈی دیپک۔ تو افسانہ جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا جو افسانہ لاجونتی ہے اس میں لاجونتی کے شوہر کا نام سندر لال ہے۔ کیا ہے؟ لاجونتی کے شوہر کا نام سندر لال ہے، اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ بیدی نے اپنے اس افسانے میں سماجی و نفسیاتی پس منظر کے حوالے سے سماج میں عورت کے مقام اور میاں بیوی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ افسانے میں ایک ایسی عورت کے نفسیات کا بیان ملتا ہے جو صرف اپنے شوہر کو اپنے پیار کا حقدار سمجھتی ہے۔ اس کا شوہر سندر لال اسے مظلوم جان کر ہمدردی کرتا ہے، یہاں تک اسے دیوی کہتا ہے، لیکن وہ دیوی نہیں داسی بننا چاہتی ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجیے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، آپشن ہے تشنہ لب ہو
शरबत दीदार का, ऑप्शन बी दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का, ऑप्शन सी मद्दुआ चश्म गौहर यार का, ऑप्शन डी है वजीफा मुझको दिले बीमार का, है वजीफा मुझको दिले बीमार का। तो सही क्या होगा, सही में से कौन सा होगा इस चारों में से? तो याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का, है वजीफा किसका? मुझ दिले बीमार का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये शेर किसका है? तो वली दकनी का है, वली दकनी का ये शेर है। किसका शेर है? वली दकनी का शेर है। वली इंतहा दर्जा के कादिरुल कलाम शायर है। जब उर्दू जबान अपने बनने की इब्तदाई मरहल में थी, ऐसे वक्त में वली के कलाम में हमें उर्दू की पुख्तगी के नमूने मिलते हैं। गोया उर्दू की इब्तदाई शायरी में वली के बराह रास्त असरात पाए जाते हैं। उन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, उन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। उन्होंने अपनी शायरी में ज़्यादातर मोहब्बत के जज्बात की अक्कासी की। उनकी शायरी पर फारसी का गहरा असर है। उन्होंने तमाम असनाफ़ सुखन में शायरी की है, लेकिन गज़ल उनका ख़ास मैदान है। गज़ल क्या है? उनका ख़ास मैदान है। किनका? वली दकनी का। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, किस कसीदे का मतला है? किस कसीदे का मतला है कि ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर? ऑप्शन ए सौदा, किसके कसीदे का मतलब? ऑप्शन बी मसफ़ी, ऑप्शन सी ज़ौक़, ऑप्शन डी मुहसिन। तो ये ज़ौक़ के कसीदे का मसला है। किसके कसीदे का? ज़ौक़ के कसीदे का मसला है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और कसीदा निगारी में सौदा के बाद दूसरा नाम शेख इब्राहिम ज़ौक़ का आता है। कसीदा निगारी में क्या है? सौदा के बाद, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बाद दूसरा नाम किसका आता है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ का ही आता है। ज़ौक़ उस दौर की शायर है जब उर्दू शायरी में अल्फाज और तराकीब की शोखी और चुस्ती, मुहावरा और रोज़मर्रा की खूबसूरती और कुदरत ज़बान को बड़ी अहमियत दी जाती है। कसीदा गोई के मैदान में ज़ौक़ का एक आला मकाम है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ज़ैल में किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? ऑप्शन ए दर्द, ऑप्शन बी सौदा, ऑप्शन सी मीर हसन, ऑप्शन डी मीर। चलिए ज़ैल में कौन मसनवी निगार नहीं है जिसने मसनवी नहीं लिखी है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द ने कोई मसनवी नहीं लिखी। वो उर्दू के मोतबर मुनफरिद कादिरुल कलाम शायर है। बुनियादी तौर पर दर्द जो है वो गज़ल के शायर है। उन्होंने फ़िक्र फ़न के आला नमूने पेश करके उर्दू गज़ल की तारीख में एक अहम मकाम हासिल किया। शायरी में तसव्वुफ़, इश्क़ हक़ीक़ी उनका असल मौज़ू है। शमअ महफ़िल, इल्मुल किताब, दर्द दिल और दमत ग़िना, रिसाले वारदात वगैरह उनकी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने एक भी मसनवी नहीं लिखी है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? ऑप्शन ए बाले जिब्रील, बांगे दरा और मकान हिजाज, ऑप्शन बी ज़रब कलीम, बांगे दरा और मकान हिजाज, ऑप्शन सी बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, बांगे दरा और मकान हिजाज, ऑप्शन डी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मकान हिजाज। तो ज़मानी एतबार से जो दुरुस्त तरतीब है वो इस तरह है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मकान हिजाज। कौन कौन से है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मकान हिजाज। तो इसमें देख लीजिए कौन आ रहा है इसमें। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसलिए कि ज़मानी तरतीब के हिसाब से पहले बांगे दरा आनी चाहिए, तो ऑप्शन डी में बांगे दरा आ रहा है। उसके बाद बाले जिब्रील आनी चाहिए, तो बाले जिब्रील आ रहा है। उसके बाद ज़रब कलीम आना था, तो ज़रब कलीम भी आ रहा है। उसके बाद मकान हिजाज आ रहा है। तो ये ज़मानी एतबार से सही तरतीब है। ये सभी मजमूए अल्लामा इकबाल के हैं। वो एक शायर, अजीम शायर है। उनकी नज़मों में फ़िक्री फ़नी महासिन मौजूद है जो उनकी नज़मों में जिला बख्शी है। मजमूआ बांगे दरा में शामिल नज़मों के मुताले से उनकी ज़हनी इर्तिक़ा को समझने में मदद मिलती है। यह उनका पहला उर्दू मजमूआ कौन सा? बांगे दरा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। इस मिसरे का उला क्या है? इस मिसरे का उला क्या है? एक दूसरा मिसरा दिया गया, उला पूछा गया। सब का दिल एक सा नहीं होता। ऑप्शन है क्यों सुने अर्ज मुज़तरा ए मोमिन, ऑप्शन बी इम्तिहान कीजिए मेरा जब तक,
ऑप्शन सी रहम कर खस्म जा गैर न हो, ऑप्शन डी जिक्र अगयार से हुआ मालूम। चलिए तो 68 नंबर सवाल का जवाब क्या है, रहम बर खस्म जा गैर न हो, रस्म बर रहम कर खस्म जा गैर न हो, सबका दिल एक सा नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये शेर जो है मोमिन खान मोमिन का, ये शेर किसका, मोमिन खान मोमिन का ये शेर है, मोमिन खान मोमिन का ये शेर है। मोमिन की गज़लें उर्दू शायरी का बेहतरीन वर्षा है। मोमिन की गज़लों का मौजू हुस्न इश्क है, उनकी शख्सियत मोहब्बत के रंग में रंगी हुई नजर आती है, ये वजह है कि उनकी गज़लों में उनका मुकम्मल इजहार मिलता है। चलिए अगला शेर आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शेर नहीं दोस्तों सवाल, इनमें से कौन सी मसनवी मिर्जा शौक की नहीं है। ऑप्शन ए आज़ार इश्क, ऑप्शन बी बहार इश्क, ऑप्शन सी फरेब इश्क, ऑप्शन डी जहर इश्क। तो आज़ार इश्क मिर्जा शौक लखनवी की नहीं है, आज़ार इश्क जो है मिर्जा शौक लखनवी की नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उनकी मशहूर मसनवी जहर इश्क है, किसकी, मिर्जा शौक लखनवी की जो है मशहूर मसनवी कौन से, जहर इश्क है। उनके अलावा उन्होंने मसनवी बहार इश्क और फरेब इश्क भी लिखी है। मिर्जा शौक लखनवी की जवाल आमादा तहजीब के नुमाइंदा थे, वो के लखनऊ की जवाल आमादा तहजीब के नुमाइंदा थे। कौन, मिर्जा शौक लखनवी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसने अपनी बेगमात को जो खतूत लिखे थे वो उनकी मकतूब निगारी के नफीस और उम्दा नमूने तस्वुर की जाते हैं। ऑप्शन ए आसिफुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी अमजद अली शाह। तो वाजिद अली शाह ने अपनी बेगमात को जो खत लिखे थे वो उनकी मकतूब निगारी की नफीस और उम्दा नमूने हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये कौल किसका, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया है, किसका कौल है। ऑप्शन ए मसीहुज़्ज़मा, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरह, ऑप्शन सी मसऊद हसन रिजवी अदीब, ऑप्शन डी शिबली नोमानी, अल्लामा शिबली नोमानी। तो ये कौल जो है मौलवी अब्दुल हलीम शरर का है, किसका है, मौलवी अब्दुल हलीम शरर का है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनीस ने मरसिया को तरक्की के आला दर्जे पर पहुंचाया, उन्होंने फिक्र फन दोनों ही एतबार से मरसिया में गिराकत इजाफे किया है। वो एक आला सुखनवर होने के साथ साथ खुश आवाज भी थे, मेंबर पर मरसिया पढ़ने का भी हुनर बखूबी जानते थे, उनका अदायगी का अंदाज कद-ओ-क़ामत मरसिया खाने के लिए मौजूद था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ज़मानी एतबार से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए अशब आबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हसन शौकी, इब्न निशात वजही। ऑप्शन बी अशब आबानी, इब्न निशाती, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह वजही। ऑप्शन सी अशब आबानी, हसन शौकी, इब्न निशाती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह वजही। ऑप्शन डी अशब आबानी, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह वजही और इब्ने निशाती। तो ज़मानी एतबार से तीनों में चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए अगर हम ज़मानी एतबार से बात करें तो सही जुमले में सबसे पहले आएंगे अशब बयाबानी, उसके बाद हसन शौकी, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसके बाद वजी, उसके बाद इब्ने निशाती। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, अशब बयाबानी, उसके बाद कौन से आ रहे हैं, अशब बयाबानी, देखिए चारों में अशब बयाबानी है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, फिर उसको देखें हसन शौकी, तो हसन शौकी दो में हसन शौकी है, सी और डी में, ऊपर वाले दो छट गए, सी और डी में। आगे फिर देखते हैं कि आगे ज़बानी एतबार से कौन आएगा, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो ये ऑप्शन डी में आ गया। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं कि क्या वो सही है, वजही फिर इब्न निशाती, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
मसनवी अलीनामा का साल तसनीफ क्या 1663, 1664, 1665, 1666। तो मसनवी अलीनामा का साल तसनीफ 1666 है। क्या 1666? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसके खालिक मुल्ला नुसरती है। अलीनामा के खालिक कौन है? मुल्ला नुसरती है, याद रखिएगा, नुसरती। अलीनामा के खालिक कौन है? मुल्ला नुसरती है। उनका शुमार दक्कन के बड़े शायरों में होता है। अलीनामा दक्कनी जबान का शाहकार नमूना है। एक रसमिया मसनवी है। यह मसनवी बीजापुर की एक मुस्तद तारीख है। इस मसनवी नुसरती ने शाही दरबार की बसीरत, सियासी और जंगो जदल का नक्शा खींचा है। अगला सवाल, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी है? ऑप्शन ए गंज मानी, ऑप्शन बी गंज खूबी, ऑप्शन सी बागो बहार, ऑप्शन डी सिंहासन बत्तीसी। हाँ, तो मीर अमन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी है? तो देखिए, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा गंजे खूबी लिखी है। कौन सी लिखी है? गंजे खूबी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में तर्जुमा निगार के तौर पर काम किया। यह किताब सबसे पहले नागरी रस्मुल खत में कलकत्ते में 1805 में शाये थी। नागरी सबसे पहले किस रस्मुल खत में शाये थी? नागरी रस्मुल खत में शाये हुई थी। कहाँ शाये हुई थी? तो कलकत्ते के अंदर। कहाँ? कलकत्ते के अंदर शाये हुई थी। कब हुई थी? तो 1805 में। कब हुई थी? 1805 में शाये हुई थी। उर्दू जबान में ये किताब 1846 में कलकत्ते से ही शाये हुई। उर्दू जबान में कब शाये हुई थी? 1846 में। कहाँ से? तो कलकत्ते से ही शाये हुई। बागो बहार किताब मीर अमन की इस तसनीफ को उर्दू में मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि गंज खूबी की इबारत बागो बहार की तरह सादा और शगुफ्ता नहीं है। अगर सवाल आ जाए कि गंज खूबी जो है बागो बहार की तरह मशहूर और मारूफ क्यों नहीं हुई, तो इसका आसान सा जवाब होगा, क्योंकि जो गंज खूबी की इबारत है बागो बहार की तरह आसान और शगुफ्ता नहीं है। आसान और सादा शगुफ्ता नहीं है, इसलिए। चलिए, अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है, वो कुछ यूं होंगे। नीचे दिए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जो नीचे शेरी हिस्सा दिया गया उसको पढ़ना है, फिर नीचे जो सवाल दिए गए हैं फिर उसको हल करना है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे। मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे। उबलते देखी है सूरज मैंने तारीकी, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी। नाराज आएगी ये सुबह जर निगार मुझे, नाराज आएगी ये सुबह जर निगार मुझे। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा। जमाना लाख करे आके संगसार मुझे, मुफाका मस्त हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, सलाम करता है आशोब रोजगार मुझे। चलिए, इस शेर के हवाले से दिए गए जो अशार हैं उनके हवाले से लगता है कि एक गज़ल ही है। हाँ, गज़ल ही है ये। तो उस हवाले से जो है अब सवालात होंगे, आप शेर को पढ़िएगा और सवालात का हल कीजिएगा। चलिए, शायर पत्थर के पांव किसके कहने पर चूमेगा? शायर पत्थर के पांव किसके कहने पर चूमेगा? ऑप्शन ए जमाने के कहने पर, ऑप्शन बी दिल के कहने पर, ऑप्शन सी महबूबा के कहने पर, ऑप्शन डी दिलबर के कहने पर। तो शायर जो है पत्थर का पांव दिल के कहने पर चूमेगा। किसके कहने पर? दिल के कहने पर, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। शायर कहता है कि पत्थर के पांव को दिल के कहने पर चूमेगा, चाहे जमाना लाख मुझ पर पत्थर बरसाए, मैं तब भी पत्थर के पांव चूमूंगा, बस अगर मेरा दिल इसकी इजाजत दे दे मुझे, अगर दे देगा तो मैं पत्थर के पांव भी चूम लूंगा। चलिए, अगला सवाल है, शायर उरूज फन कहाँ उतारने की बात कर रहा है? ऑप्शन है अपनी दहलीज पर, ऑप्शन बी अपनी छत पर, ऑप्शन सी अपनी ड्योढ़ी पर, ऑप्शन डी अपने दरवाजे पर। तो शायर जो है ये उरूज फन को अपनी दहलीज पर उतारने की बात कर रहा है। कहाँ? दहलीज पर, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी शायर कहता है कि मैं अपने घर को देखने के लिए किसी ऊंचाई पर क्यों जाऊं, मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे फन की बुलंदी मुझे मेरी दहलीज तक खुद पहुंचा दे।
چلیے اگلا سوال جو ہے شاعر کو لہو کے سمندر کی پکار کا انتظار کب ہے؟ کب سے ہے؟ آپشن اے برسوں سے، آپشن بی صدیوں سے، آپشن سی مدتوں سے، آپشن ڈی زمانوں سے۔ تو شاعر مذکورہ نظم کے مصنف جو ہے خلیل الرحمن ہے۔ انہوں نے اردو کے ادب میں ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کیا۔ شاعر کو لہو کے سمندر کی پکار کا انتظار کب سے؟ صدیوں سے۔ آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ دوستو یہ غزل نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظم ہے۔ ہم نے غزل کہا تھا تو یہ غزل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک نظم ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ غزل نہیں ہے، نظم ہے۔ چلیے اس کا اگلا سوال 78 شاعر نے سورج سے کس کو ابلتے دیکھا؟ آپشن اے تاریکی کو، آپشن بی تیرگی کو، آپشن سی روشنی کو، آپشن ڈی آگ کو۔ تو شاعر نے سورج سے تاریکی کو ابلتے دیکھا۔ کس کو؟ تاریکی کو۔ اس لیے آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ آپشن اے صحیح ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے یہ سنہری صبح راس نہیں آئے گی۔ چلیے اگلا سوال ہے وہ ہو جس سے راہ سے گزرتا ہو، وہ ہو جس راہ سے گزرتا ہو۔ ذیل میں دیے گئے لفظوں سے صحیح تلخی کش، فاقہ کش، بادہ کش یا میں کش۔ تو ذیل میں دیے گئے لفظوں میں وہ فاقہ کست ہے، وہ فاقہ مست ہے۔ کیا؟ فاقہ مست۔ آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ آپشن بی فاقہ مست غربت و تنگی میں بھی مگن رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے؟ وہ فاقہ مست ہو جس راہ سے گزرتا ہو۔ چلیے اگلا اور آخری سوال بلندی کا متضاد کیا؟ آپشن اے پستی، آپشن بی اونچائی، آپشن ڈی لمبائی، آپشن سی ڈی طویل۔ تو بلندی کا جو متضاد ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ پستی ہو جائے گا۔ متضاد بولتے ہیں الٹا کو، جو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اونچائی یا ارتفاع کیا؟ کون؟ بلندی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں۔ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔